on this Yes, term. sure. So I want all of you to look at this. These are the questions which are supposed to come little ahead, but since it is a small part of isomerism that has been taken. Now, usually what we know is that glucose, fructose, sucrose, these are all sugars. And these sugars are being derived from glyceraldehyde, mainly from glyceraldehyde. In glyceraldehyde, what we will have one OH group here, CH2OH group here, CHO group here, and this one. This is called glyceraldehyde. So in glyceraldehyde, this is the Fischer projection of glyceraldehyde. In fact, any sugar, or what we call it as the carbohydrate, its basic definition is it should have a polyhydroxy aldehydes or ketoforms. This is what we expect from a carbohydrate. So you can see there are two hydroxy groups and an aldehyde group. So ये sugar हो गया ना, and this is the smallest sugar possible which we can think, and it does have a chiral center. With respect to this chiral center, if you see, this is the high priority group, this is the second high priority group, this is the third high priority group, this is the fourth high priority group. So if you see 1, 2, 3, it is moving anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction when hydrogen is on the vertical line makes it R configured. It is R configured. When it comes to R configured, if you have a single carbon, if you have a single chiral center, और वो R configuration आ रहा है, so even on the polarimeter it will show dextro rotation, and this is only valid for single chiral center. So since it is dextro rotation, we call it as a, you know, D rotation, correct? So glyceraldehyde, because it is showing a dextro rotation, glyceraldehyde is showing a dextro rotation. All the sugars which are derived from the this dextrorotatory glyceraldehyde, we call them as capital D sugars. We take this as the reference and we call it as capital D sugar. What I meant to say is, now if at all I keep increasing number of OH groups and carbon, यहाँ पे OH वैसा ही है, यहाँ पे CH2 वैसा ही है, H is the same way, यहाँ पर H2 है, और बीच में कार्बन ऐड कर दिया हमने with one OH on the right hand side, one OH on the left hand side, and one H on the left hand side, and OH on the right hand side here. This way I can keep adding. This way I can keep adding here. So from glyceraldehyde, after introducing one more this carbon here, this carbon with one OH, this carbon with one OH, this has become a new sugar now. ये sugar का definition तो fit हो रहा है, polyhydroxy aldehydes and ketones. And moreover, नीचे का आप देखोगे section पूरा it is matching with the glyceraldehyde. So this would called as, because इसको reference as a D लिया है, we call this as D sugar. This is also a D sugar. D sugar is always checked with respect to this carbon, last chiral carbon. Okay. But if you see absolute configuration, दोनों carbons का अलग अलग है. IUPAC wise, if you write it down, this is the first carbon, second, third, and fourth carbon. And IUPAC wise, if you see that first carbon is an aldehyde, second, third, and fourth has three hydroxy group with two chiral centers. The first chiral center, if you check out the rotation, optical rotation ना, ये 1 2 3 ऐसे घूमेगा, तो ये R हो गया, और ये आप चेक करोगे तो ये भी ऐसे घूमेगा, ये भी R हो गया. So you will have this as 2R, 3R, 2R, 3R, and this is what beta? Butanol 1 2 3 4, ये butanol है. So I can write this as 2R, 3R, and 2 comma 3 comma 4 trihydroxy butanol. Butanol. This is the name, this is the IUPAC name of this particular sugar. And this sugar has a common name, that is D uh, erythrose. Ose is a term used when you are describing a sugar, and erythro is a term used when both the groups are on the same side. OH OH अगर सेम साइड है, सो उसको एरिथ्रो कहेंगे. अगर ऑपोजिट साइड में है तो उसको थ्रियो करेंगे.
So the common name for this sugar is D3Os. So ये कुछ क्वेश्चंस में आया था, आप लोगों ने पूछा था मुझे, कुछ लोगों ने पूछा था मुझे. So I hope now you got an idea what is erythros, what is threos, what is D3Os, and what is D erythros. Anybody has a doubt here? No, sir. Perfect. So now if you keep extending this chain and make it a 6 carbon chain, then we would have glucose. So यहाँ पर CHO, CH2OH, and this OH is on the right hand side, and this is the OH which decides whether it is a D sugar or an L sugar. So OH here and OH here, OH here and H here. So if you write it this way, then this is called the D glucose, capital D glucose. And in the capital D glucose, this is carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. And on the second position, you can see this is 2R, 3S, 4R, and 6R, sorry, 5R, which are the chiral centers, right? ये उसका absolute configuration है. कुछ कुछ books इसको एक जनरल टर्मिनोलॉजी भी दे दिया है कि दैट दिस इज लाइक R मीन्स D, S मीन्स L, R यहाँ पे भी R है तो D, फाइव को कैपिटल L, sorry, capital D. So this capital R is replaced with that capital D. Okay, but IUPAC accepts this. Clear? This is a general representation in sugars, but this is more accepted IUPAC. सर Understood? दूसरा वाला आइडियली रॉन्ग है ना लिखना. Yes, ideally wrong है. हाँ, ये लिखना ओके चाहिए हमेशा ओके. कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी हमेशा फैमिली को असाइन किया गया है. ठीक है, लाइक ग्लिसराल्डिहाइड एक फैमिली है, उस फैमिली से डिराइव्ड वो एक ट्री है, वो ट्री से डिराइव्ड सारे फ्रूट्स या जो भी आते हैं उस फैमिली को बिलोंग करते हैं ना. सो वो सारे डी ग्लूकोज को बिलोंग करते हैं. समझ में आया? नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, व्हेन यू ऐड ग्लूकोज टू वाटर, राइट, वाटर में क्या होगा, ये ग्लूकोज ऐसे एक वर्टिब्रे की तरह बेंड है. ये देखो, ये पूरा एक है ना, ये तो हमने फिशर प्रोजेक्शन लिखा, बट एक्चुअली आप देखोगे तो एक ऐसा बेंट दिखेगा वो मॉलिक्यूल, ये पूरा एक स्पाइन की तरह दिखेगा. दिस इज कॉल्ड द स्पाइन ऑफ द शुगर. सो एक स्पाइन की तरह दिखेगा और स्पाइन के ऊपर ऐसे स्पाइक्स है सारे ग्रुप्स. ठीक है, इस तरह से होंगे. सो अभी क्या होगा, ये जो फर्स्ट कार्बन है जहां पे CHO है, ओके, और ये जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पर इस तरह से. सर ऐसा रिपल्शन की वजह से होता है, क्या बेटा? ऐसा शेप रिपल्शन की वजह से आता नहीं, है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. sp3 में कैसे दिखेगा आपको? sp3 में हाँ सारे एक हाँ या दूर दूर गॉट होंगे इट. ना, सब में 170 डिग्री 109 डिग्रीज बॉन्ड एंगल के थ्रू यस ऐसे बन गए. तो एज ए ब्रॉड देखोगे ना, ब्रॉड देखोगे तो CHO और OH ऐसे दिखेंगे, इस तरफ आ रहे. तो ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करके वाटर में, हाँ, वाटर में इंटरैक्ट करके ये क्या करेंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है उनको कहते हैं हम लोग एनोमर्स, वो कहते हैं एनोमर्स. नो बिफोर लर्निंग अबाउट एनोमर्स, पहले हमको टर्म बाय टर्म जाते हैं. व्हाट आर डायास्टीरियोमर्स बेटा? डायास्टीरियोमर्स एक ही दिमाग में आना चाहिए, नॉन मिरर इमेजेस, बराबर. They should not have any mirror images. This is the first thing we will look at for. Next, within diastereomers, we have one more type of a diastereomer, and that is epimers. Epimers मतलब ये भी नॉन मिरर इमेजेस ही होंगे, बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज ओनली ऑन वन पोजिशन, वन कायरल पोजिशन, वन कायरल पोजिशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यही कंपाउंड लिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिया और दूसरा ग्लूकोज यहाँ पे लगा दिया ऐसे, राइट. सो बेसिकली इसमें कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट एट दिस सेकेंड कार्बन. इमेजिन on the second carbon I am writing OH on the left here and H on the right. Now tell me, are these two mirror images beta? They are not identical, they are not mirror images. The configuration is only changing on the second position, बाकी सब positions बिल्कुल same है.
So they are diastereomers because they are not mirror images with configuration changing only on one carbon. When configuration changes only on one carbon, so this compound and this compound, these are called apimers. These are called apimers. For example, ये है structure glucose का, और जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, हर कॉन्फ़िगरेशन वाले का अलग अलग नाम है बेटा. इसका नाम है मैनोस. सो दिस इज ए डी ग्लूकोज, दिस इज ए डी मैनोस, एंड बोथ ऑफ देम आर एपिमर्स ऑफ ईच अदर. एपिमर्स भी क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर, क्लियर. No, राइट. लास्ट थिंग, अगर यही एपिमर्स जो फॉर्म हो रहा है वो कार्बन 1 पे होता है ना, तो उसको कहेंगे एनोमर्स. अब मैंने जैसे बोला कि इफ वी हैव ग्लूकोज where this oxygen's lone pair started interacting with this carbon, so यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा. देखो अभी आपको बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सब तो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा नहीं. हम लोग डायरेक्टली उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये बॉन्ड बनने के बाद स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा. ओके, सो वंस द बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड हियर, now the structure would look similar to that this except that यहाँ पर ये दोनों, यहाँ से ये कार्बन को हटा दो और ये कैसे दिखेगा, ये कार्बन था और इस कार्बन के ऊपर ये लोन पेयर अटैक हो गया, तो एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में. 5 और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया. उस बॉन्ड को यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ऐसा बॉन्ड बन चुका है. क्लियर? सॉरी, ऑक्सीजन के साथ ऐसा बॉन्ड बन चुका है इस तरह से. ठीक है, और ये कार्बन के ऊपर जो H और O था ना, वो O बन के OH बन गया है और दूसरा H बन गया है ऐसे. क्लियर है? दिस एंटायर थिंग इज अ बॉन्ड. यहां से यहां तक बॉन्ड है, ये पूरा एक बॉन्ड है यहां तक. डोंट थिंक दैट सर ये वर्टाइसेस मतलब दूसरा कोई कार्बन है क्या, नहीं, ये पूरा एक ही है, बट टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, इसके लिए इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, सो दिस एंटायर थिंग इज यहां से यहां तक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन से कार्बन का एक बॉन्ड है. तो ऐसा भी हो सकता है कि ये OH राइट पे भी आ सकता हो और ये लेफ्ट पे भी आ सकता हो, व्हिच मींस द स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम. Structure is exactly same except that this OH could come on the left side or right side. है तो डी ग्लूकोज ही, बट ये साइक्लिक बन गया, तो इट इज अ डी साइक्लोग्लूकोज. साइक्लोग्लूकोज, करेक्ट. ये भी डी साइक्लोग्लूकोज जैसा बन गया है, करेक्ट. बट its configuration is different in two positions, correct? So can I say these two are also apimers, but they are changing at carbon 1 position? So जो aldehydic या ketonic carbon होता है, अगर उसके ऊपर एपिमर बनता है, then we call these two set as anomers. So 1 and 2 are called as anomers. So anomers are a type of epimers where they form only on the carbon where the double bond O was initially present. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? What are anomers? And this if the OH is forming on the right hand side, beta, this glucose is termed as the alpha D glucose, and अगर OH लेफ्ट में है तो उसको कहेंगे हम लोग बीटा डी ग्लूकोज. सो अल्फा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज भी क्लियर है? एनी डाउट हियर? सर रिपीट कर सकते हो? हाँ देखो बेटा, व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन दिस OH वाज अटैकिंग ना, तो यहाँ का H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और वो OH बन जाता है. व्हेन दिस इज फॉर्मिंग, ये OH राइट पे भी हो सकता है और ये OH लेफ्ट पे भी आ सकता है, क्योंकि ये sp2 है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल है. प्लेनर मॉलिक्यूल में OH राइट पे भी आ सकता था, लेफ्ट में भी आ सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट आएंगे आपको. मतलब आप जैसे ग्लूकॉन डी लो, ग्लूकॉन डी लेके पानी में डाल दो तो आपको दो तरह के ग्लूकोज मिलेंगे. उसमें एक ग्लूकोज जिसमें इस कार्बन पे OH राइट साइड पे हो, दूसरा ग्लूकोज जिसपे OH लेफ्ट साइड पे हो. जो OH राइट साइड पे होता है उसको हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, जो OH लेफ्ट साइड पे होता है उसको कहेंगे हम लोग बीटा डी ग्लूकोज. अल्फा और बीटा में क्या फर्क है देव? अल्फा और बीटा में सिर्फ उस कॉन्फ़िगरेशन का ही फर्क है ना. हाँ सर. सो द कॉन्फ़िगरेशन where only one chiral center पे configuration change होता है, what do we call them? Epimers, right? These are the special cases of epimers.
epimers where configuration is changing on the carbon where double bond was present. ठीक है? So this carbon, the carbon where the double bond was present, that carbon is always called as anomeric carbon. Anomeric carbon. सर if फर्स्ट छोड़ के कोई और कार्बन वाले OH का पोजीशन चेंज होगा तो दोनों स्ट्रक्चर सिंपली डैश ट्यूमर्स ही हो जाएंगे ना? वो एपिमर्स होंगे, ओनली एपिमर्स होंगे, एक ही जगह पे चेंज हो रहा है तो। अगर दोनों जगह पे चेंज हो रहा है तो जनरल डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, सपोज आपने आपको ये क्वेश्चन बता दूं, देखो समझ, कंपेयर डी मैनोस एंड अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों क्या है बेटा? सर एपिमर्स। एपिमर्स कैसे है? एपिमर्स नहीं है अभी, अभी ये अच्छा डायस्टीरियोमर। अल्फा डी ग्लूकोज। कोई भी अल्फा लो बीटा लो, कोई भी ग्लूकोज को इस वाले फॉर्म को अगर आप अपनी मैनोस से कंपेयर कर रहे हो हाँ तो ये तो डायस्टीरियोमर्स हो गया ना। सर मैं 1 और 2 को कंपेयर कर रहा था, मतलब डी ग्लूकोज और डी मैनोस को। हाँ नहीं ठीक है, तो क्लियर है ना, तो एक ही जगह पे चेंज होता है तो या तो एपिमर बनेगा या एनोमर बनेगा। ओके, आई थिंक ये आइडिया क्लियर है सबको। अभी ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ध्यान से देखो कितने कितने वर्टाइसेस से बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक ए साइक्लोहेक्सेन। इसी के लिए आपको सिलेबस में पढ़ाया गया कि सपोज डी अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज दोनों के दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, if you see that the cyclic structure would look like this. okay, इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हो, 6 मेंबर्ड रिंग है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, करेक्ट। और इसका चेयर फॉर्म भी लिख सकते हो अभी आप, दिस इज द वे इट इज, करेक्ट। आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये टॉप व्यू है, या ऐसे रिप्रेजेंट करो ये फ्रंट व्यू है, चेयर की जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि आप सामने से ऐसे देख रहे हो, यू नो ग्लूकोज ऐसे पड़ा हुआ है और आप इधर से देख रहे हो, क्लियर। सो इन दैट केस इट अपीयर्स लाइक ये हमारे सामने से आ रहा है, ये अपनी सामने की तरफ आ रहा है ऐसे। ठीक है, अंडरस्टूड। सामने की तरफ और हाइट पे देख रहे हो आप, तो वो प्लेनार भी दिख रहा है और कुछ निकला हुआ अपनी तरफ दिख रहा है। सो इन दैट केस इट अपीयर्स लाइक दिस विद देयर आर ग्रुप्स हियर। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर को मैं फिर से यहां पर लेके आता हूं, देखना ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे दिखेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस alpha. Let us talk about alpha now. If you look at the alpha, यहां से कार्बन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ओके, सो फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH राइट साइड में ना, बिकॉज अगर ये हम लोग एज ए प्लेन ले लेंगे तो मिरर में ये हम लोग को राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, बराबर, ये राइट एंड लेफ्ट है। सो राइट साइड में पूरे ये ग्रुप्स है, लेफ्ट साइड में पूरे ये ग्रुप्स है। तो ये काम करो, ऐसे प्रोजेक्शन में जो भी राइट आता है ना उसको नीचे डाल दो, जो लेफ्ट आता है उसको ऊपर डाल दो, करेक्ट। अभी ये सिक्स्थ वाला जो सेंटर पे दिख रहा है वैसे तो, बट ये आएगा लेफ्ट में ही हमेशा। ये हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब मैं बताऊंगा हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में। इतना याद रखना, जो सबसे नीचे होता है वो हमेशा लेफ्ट में ही आ जाता है। तो अभी बताओ कैसे दिखेगा ये। यहाँ पे H है और यहाँ पर OH है, सेकेंड पोजिशन में H ऊपर है, OH इधर है ना। थर्ड पोजीशन में OH ऊपर है, H नीचे है। फोर्थ पोजीशन में OH नीचे है, H ऊपर है। और फिफ्थ पोजीशन में CH2OH इधर है और H नीचे है, बराबर। ये आ गया सबको? एनी डाउट देयर? यस सर। सो दिस इज लेफ्ट वन, दिस इज राइट वन। ओके, अब इसी को शेयर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा, करेक्ट। तो कार्बन 1 कहां से स्टार्ट होगा बेटा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट। नाउ लुक एट दिस, दिस OH इज डाउन, डाउन मतलब एक्सियल, करेक्ट, एक्सियल, राइट। क्योंकि ये पोजीशन के ऊपर, ये तो ऊपर टॉप वाला पोजीशन हो गया, उसके नीचे ये पोजीशन में एक्सियल कैसे रहेगा? नीचे, ठीक है।
फिर इसका एक्सियल ऊपर, इधर एक्सियल नीचे, ऊपर, फिर एक्सियल नीचे, बराबर। तो अभी इसी स्ट्रक्चर को फिर से लिखते जाओ इधर, कैसे दिखेगा, OH नीचे। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ऊपर है बेटा, हाइड्रोजन ऊपर है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। थर्ड पोजीशन में नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन है ऊपर, और फिफ्थ पोजीशन पे नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। डन। और बाकी ग्रुप्स क्या क्या है देखो, यहाँ पर इस ग्रुप में हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर ऐसा ग्रुप है जिसपे OH है, और यहाँ पर भी OH है, और यहाँ पर भी CH2OH है, ऐसा है। क्लियर। हैव यू नोटिस समथिंग, इस स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सारे बल्की ग्रुप्स, दैट इज OH ग्रुप्स, एवरीथिंग इज इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जितने भी बल्की ग्रुप्स है यहाँ पे OH सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे है, एक्सेप्ट इसके अलावा, राइट, एक्सेप्ट दिस, ये एक ही एक्सियल पोजीशन पे है ना। एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दैट, Yes, sir. राइट। सो एक्सेप्ट C1 का OH, every other bulky group, every other bulky group is at equatorial position. Clear? Now this is about the alpha glucose. Okay? बीटा ग्लूकोज में कुछ फर्क आएगा बेटा, बीटा में सिर्फ एक ही जगह पे तो फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर जैसा मैं वैसे ही नोट कर सकता हूं, राइट। सो अभी मैं डायरेक्टली इसी को लेकर मैं बीटा बना दूंगा अभी, दैट copied here. Now look at it. This is the alpha D glucose. Now what happens to the beta D glucose? बीटा में सिर्फ एक ही जगह फर्क है, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे। सिर्फ ये ऊपर नीचे है, बस उतना ही। तो ये H नीचे, अब OH ऊपर, डन। तो अभी यहाँ पर क्या आना चाहिए, H नीचे और OH इधर। अब नोटिस करो OH किधर है बेटा, इक्वेटोरियल में। इसमें सारे इक्वेटोरियल में है, इसमें एक एक्सियल में है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बीटा। बीटा, करेक्ट। सो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर। सो जब आप पानी में ग्लूकोज डालोगे, सो अल्फा बन जाता है 36%, बीटा बन जाता है 64%, 64%, ठीक है। बट जनरली बेटा, इफ यू कंपेयर एन अल्फा एंड बीटा ऑफ एनी कंपाउंड्स, जनरली जहां पर ऐसा साइक्लिक नहीं है, सपोज यही कंपाउंड ऐसा है, ऑक्सीजन नहीं है, इमेजिन करो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है स्ट्रक्चरली। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ये नहीं है, वो ऑक्सीजन के बदले में कार्बन है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, इमेजिन करो ऐसे। ओके। सो और मे बी लेट मी जस्ट कॉपी दैट हियर, दिस वन। Imagine this oxygen is non-existing, and this is directly with carbon here, clear? And this is the same thing, यहाँ पे भी directly carbon के साथ connected है। Yes. So when it is this way, right, जो कि हम लोग को अभी 36 और 64% दिख रहा है पानी में, अगर ये कंपाउंड्स पानी में होते ना, तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता, दिस इज हार्डली 1 to 3%, एंड रेस्ट ऑफ द 97 to 100%, 99% विल बी दिस वन ओनली, क्योंकि इक्वेटोरियल उतना ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया सबको? बट ग्लूकोज के केस में क्यों इतना ज्यादा अमाउंट आ रहा है? अगर इक्वेटोरियल इतना स्टेबल है तो आई मीन बीटा शुड बी द मोस्ट स्टेबल, 99% तो वही होना चाहिए, but instead of being 99% it is coming close to 64%, which is quite less as what we expect, and 36% which is very high than expected is only 1 to 3%. Okay, this is something called as anomeric effect. Anomeric effect. So what is happening in anomeric effect is that if you take the glucose form once again, let me write the same glucose form. Okay. This way it was. In this,
If you look, this is the OH group, this is alpha position, एंड रेस्ट ऑल ग्रुप्स के बारे में कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा मतलब ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे ही ये इफेक्ट लगता है. नाउ हियर बेटा अगर कोई समझो H और Cl का मैंने बॉन्ड बनाया, इसका बॉन्ड कैसे दिखता है? ये ऐसे ओवरलैप हो रहा होके दिखता है, राइट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर ये बॉन्डिंग का एंड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग किधर होगा बेटा? एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना. दिस विल बी सिग्मा स्टार if this is the sigma bond which is forming. Yes, everybody understand? जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में उसका पाई स्टार या सिग्मा स्टार होगा. If this is a sigma bond which is forming, then exactly on the opposite direction it will have its sigma star orbital. So this is a carbon oxygen's sigma star orbital which is forming. And if you see the lone pairs present on oxygen, one would be on the axial direction, one will be on the equatorial direction, because ये भी sp3 hybridized carbon oxygen है. So one lone pair would be up, one lone pair will be down. Now what would happen when carbon oxygen is a very strongly pulling group. More the pulling group, more is the energy of this pi star which is formed, beta. And more energy form, more it will be able to pull the electrons here. So यहाँ पर आपको migration दिखेगा electrons का. So these electrons will start migrating here and making a partial double bond character here. And because of this double bond character, this would become very stable. Here. So criteria क्या है? This overlapping is what we call it as the anomeric effect. So what is anomeric effect, beta? Overlapping of lone pair on oxygen and sigma star orbital of CO bond. This is what we call it as the anomeric effect. Samarth, is that clear now? Yes, sir. Clear. Because of that the stability increases, and ये stability के कारण ही उसमें परसेंटेज बढ़ते जा रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने ग्रुप्स विथड्रॉइंग होंगे उतना बेटर होते जाएगा ये. क्लियर? अच्छा, बिटवीन OH एंड OR विच इज मोर विथड्रॉइंग बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा कौन सा है? नॉट OR, आई वुड से, rather I would say OCH3. Which is more withdrawing, everyone? अरे बताओ, कोई ना कोई आंसर तो दो. OCH3 बेटा, माइनस है इसका ज्यादा होता है. ओके, ये ध्यान रखना. OH और OCH3 में किसका माइनस से ज्यादा होता है? OCH3. Yeah. So if we compare this, right, this is the same form I'm comparing. इसका जैसे अभी 36% आया ना, how we got this as 36%. अब ये परसेंटेज सिर्फ बढ़ते जाएगा अगर आपने विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते चले गए. So instead of this is being 36%, now imagine in the same glucose मैंने H के बदले में CH3 लाना चालू कर दिया. So ग्लूकोज अल्फा और बीटा ग्लूकोज में, जिसमें H के बदले में भी सारे OCH3 आ चुके हैं. So इसमें ये विथड्रॉइंग ज्यादा होगा तो ये ओवरलैपिंग कैपेसिटी और ज्यादा होगा. This becomes 45% now. Is that clear? And same structure, if we add even more withdrawing like O, C double bond O, CH3, here this has become 67% now. Sir, in Understood? the first that OH example, हाँ, पेस में सर ने वो फर्स्ट वाला जो OH है ना, उसको मोर स्टेबल देन इक्वेटोरियल दिया है. more stable than इक्वेटोरियल. OH को. यस सर. स्टेबिलिटी नहीं बेटा, बीटा इज मोर स्टेबल ना. परसेंटेज देखना, 64 and 36. क्लियर? नहीं सर, इसमें पर बाकी के ग्रुप्स नहीं है OH के, सिर्फ ऑक्सीजन और OH है. मतलब हाँ, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है. ये है, हाँ इसमें तो करेक्ट है. इसमें अल्फा इज मोर स्टेबल देन बीटा. अगर कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं है मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. सिर्फ ग्लूकोज के केस में बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. ओके, बाकी सारे कंपाउंड्स में अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. ओके. ठीक है, चाहे वो मैनोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, लैक्टोज हो, कोई भी केसेस हो,
उन सब में हमेशा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आता है, एक ही एक्सेप्शन है, वही ग्लूकोज है। ग्लूकोज में ही बीटा ग्रेटर देन अल्फा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना है सब लोग। सो बीटा ग्लूकोज इज स्टेबल देन अल्फा, बट रेस्ट ऑल दी कार्बोहाइड्रेट्स अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ओके, क्लियर? सो Yes, sir. अगर इसमें परसेंटेज पूछा आपको कि, सॉरी ये लिख दिया मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर आपने अगर OCH3 के बदले में OH के बदले में Cl कर दिया, Cl will become even more withdrawing here, understood? क्योंकि यहाँ पर Cl क्या करेगा, इसको और एलोंगेट करेगा, क्योंकि इसमें रिपल्शन भी होते रहेंगे ना, 1,3 डायएक्सियल रिपल्शंस होंगे, क्योंकि क्लोरीन थोड़ा बल्कियर है, तो 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन हो रहे, तो ये और नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। That's why the overlap tendency will increase, and this is found to be almost 97% in alpha. This is what we call it as anomeric effect. ये क्लियर है सबको? So यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स होगा, और आपको स्टेबिलिटी पूछा गया है इन सब में, तो आपको पता है अभी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। लोन पेयर हियर, लोन पेयर हियर, लोन पेयर हियर। ये पॉइंटर्स क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, I think this is one thing which we haven't discussed. I hope now you should not feel that left out. कुछ प्रॉब्लम है इसमें? और कुछ बताओ, कुछ टर्म्स आपको कुछ नहीं समझ में आया? डन एवरीबॉडी? सर इसमें एक और था, सर ने ऑक्सीजन की जगह रिंग में नाइट्रोजन डाला था। हाँ, ओके। सो इफ द सेम थिंग, नाइट्रोजन में एनोमेरिक इफेक्ट बहुत कम होता है। इफ इट कम्स टू नाइट्रोजन, एंड प्रॉब्लम हियर इज, नाइट्रोजन में क्या होगा, एक ग्रुप भी होता है और एक लोन पेयर भी होता है, करेक्ट? Yes, sir. Right? So lone pair coming on axial direction, clear? Relatively less, understood? इसके बहुत सारे स्पेशल केसेस है, बट अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। ओके, सो मैकेनिज्म के टाइम पे जाएंगे। सो यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर का एग्जिस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेटोरियल रखने की कोशिश करेंगे, तो इसका ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैरेलल ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इसमें एनोमेरिक इफेक्ट बहुत कम दिखेगा। अंडरस्टूड? Can you please repeat the reason? What I'm saying, in case of instead of oxygen, if it was nitrogen, na beta, nitrogen has to accommodate 3 bonds and a lone pair, right? So if there are 3 bonds and a lone pair, then this lone pair is preferred to put it at equatorial position rather than axial position, correct? So when you put it here, then that will have least there won't be any overlapping happening between these two, correct? Because they are not parallel anymore. So this is less stable. This is less stable. If at all, you keep it as the alpha position. Okay, मतलब axial Yes, sir. position. Okay, got that? Yes, sir. Anything else in this area? No, sir. Yeah. Right. Now let us get back to thermo. You asked about some entropy questions. So if at all we have to discuss on the entropy part, how would be they and what type of questions to be dealt with? Okay. Instead of directly solving the questions, got it? जहां जहां पे यूज होता है कुछ थ्योरी, वहां पे मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, बट अदरवाइज सिंपल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एंड विल सी हाउ वी कैन प्रोसीड। फर्स्ट वन, in case if we have, this is a very standard JEE mains question where delta H of vaporization of water is given and delta S of vaporization is given and temperature at equilibrium. देखो बेटा, the minute it is been asked at equilibrium, मतलब delta G is equal to 0 and H2O is been asked at liquid converting into H2O gas, and at this point, so delta H is equal to T delta S. So this is the phase change, PC as in phase change, or in this case it is also called as the boiling point, is equal to delta H of vaporization divided by delta S of vaporization. हो जाएगा ये क्वेश्चन ना? सिंपल है, Yes. राइट? नेक्स्ट,
1 mole of an ideal gas 25 degrees is subject to expand reversibly and adiabatically to 10 times of its initial volume. Calculate the change in entropy. यहाँ पे मैं थोड़ा सा थ्योरी समझा के फिर वापस आता हूँ, देखना सब लोग. जनरल फॉर्मूला, ऑलवेज स्टार्ट विद जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला फॉर एन आइडियल गैस, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ये इंस्टेंटली याद आ जाना चाहिए सबको. ओके, एन सी वी एल एन T2 by T1 plus NR V2 by V1. This is the general formula. I think all of you know that. Yeah. Yes, sir. So based on this general formula, now we have different cases. So I'll first start with isothermal. In isothermal case, we know that delta T is equal to 0, which means delta S of the system will be equal to NR V2 by V1. अब ये अभी तक भी हम लोग जनरल फॉर्मूला है. विद इन आइसोथर्मल हम लोग के पास हमेशा दो टाइप ऑफ वर्क्स किया जा सकता है. वन इज रिवर्सिबल काइंड, द अदर वन इज इरिवर्सिबल काइंड. व्हेन इट कम्स टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, entropy is a state function. Does it matter whether you operate reversible or irreversible? No. Sure. So the value will be same, nr ln v2 by v1. Here also nr ln v2 by v1. What about delta S of the surrounding beta? If it is reversible, reversible may, because it is reversible, which means delta G is 0. There is whatever the amount of free energy which is going into the surrounding, the same free energy is coming into the system. So therefore minus nr ln v2 by v1 here. But what about delta S of the surrounding here? Would it be equal here? No. One thing we can say, delta S of the surrounding Yes. by magnitude will always be less than nr ln v2 by v1. And in case if delta H is given, right, delta H या Q irreversible is given, in that case I can write delta S of the surroundings, delta S of the surrounding is equal to minus Q irreversible by T. ये वैलिड है क्योंकि सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों ही सेम है. ठीक है. And what about delta S of the system in this case? Sorry, delta S of the total in this case. In this case it is 0. In this case it is greater than 0. Done. Isothermal में कोई problem? Arnav, Samarth, Ishan, all of you. So clear. Correct? Yeah. Arya, understood? Right. Yes, sir. Okay. So this is about isothermal. Now, what about if you have adiabatic? Because most important part is adiabatic, so I'm most focusing on that. In adiabatic delta S of the system, to define this itself we need directly an idea of whether it is reversible or irreversible. So if it is reversible, what would happen? If it is irreversible, what would happen? Sorry, I'll write it this way. अगर वो reversible है तो क्या होगा, अगर वो irreversible है तो क्या होगा. If it is reversible, we know that Q reversible is 0. If it is irreversible, we know Q irreversible is 0. That's it. And what about delta S of the system in that case? If Q reversible itself is 0, because the definition is Q reversible by T, this will be 0, right? While here, delta S of the system क्या होगा बेटा? Delta S of the system here, delta S of the system, if it is irreversible, will it be equal to 0 here? No. We can only say one thing, that it will be greater than Q irreversible by T. That's all we can say. But we can't find exactly what is the value of delta S of the system. We can say it is greater than Q irreversible by T. Okay. Here. And since we know this terms, because it is a state function, अगर मुझे उसका फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम पता है तो मैं ये तो कैलकुलेट कर ही सकता हूँ ना. So therefore here I can calculate delta S of the system is equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by B1. But these volume change and temperature change are subject to irreversible process, not reversible. Clear? Delta S of surroundings beta क्या होगा? Since this is 0, this also has to be 0, and Q irreversible भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा. And what I can say here,
Delta S of the total in this case will be 0 and this will be greater than 0 because this value will always come as greater than 0. कोई डाउट? No, sir. सबको क्लियर है? सर यस बेटा, tell me. सर उसमें डेल्टा एस सिस्टम T2 T1 और V2 V1 रिवर्सिबल का लेना है। नहीं, इरिवर्सिबल का ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा इरिवर्सिबल में कितना चेंज है. ओके, ओह ओके ऐसा सर आपको वो रिवर्सिबल के लिए भी ट्रू होगा ना फॉर्मूला? रिवर्सिबल के लिए भी फॉर्मूला सेम है बट इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इसके लिए 0 आता है. ठीक है, मैथमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा और एग्जैक्टली एक प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आ जाएगा. समझा? Okay, yes, sir. इसके लिए वो 0 हो जाता है. ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Right. Now, next, this is about delta S, how it is in adiabatic and isothermal. बाकी isobaric, isochoric usually नहीं पूछेंगे आपको, so don't worry about it. Next, if you see third law of thermodynamics, it says that at 0 kelvins for perfect crystal, delta S is equal to 0. क्लियर? मतलब एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंड दैट एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज इक्वल टू 0. सो जैसे जैसे 0 से बढ़ते जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ते जाएगा. सो वी कैन से दैट S which is equal to Q reversible by T, क्लियर, एंड सॉरी ds is equal to dq reversible by T. अगर इसको मैं एब्सोल्यूट किसी वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, आई विल कॉल इट एज S नॉट. ठीक है, इमेजिन इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट क्रिस्टल. अगर परफेक्ट क्रिस्टल रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगा इनिशियली एट 0 केल्विन्स. दैट 0 केल्विन्स टू सम s of ds is equal to 0 kelvins to some new temperature T, and Q can be written as some C into dt. Okay, this can be written as some C into dt. C is a heat constant, I mean heat capacity. So from here I can write this as S is equal to S minus S naught is equal to integral of 0 to t C dt. ये S naught को इधर लेके जाओ, we'll get S is equal to S naught plus integral 0 to t C dt. So मतलब किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट एंट्रोपी कोई भी टेम्परेचर पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? सो ये आपको कभी आ सकता है जहाँ पे हीट कैपेसिटी कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में आ सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हीट कैपेसिटी ऐसे दिया रहेगा आपको, ओके, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, ओके, समथिंग लाइक दैट. और ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड करना है. आई थिंक ये भी हो जाएगा सबसे. Yes, sir. Perfect. So let us come back to the question now. So here, tell me about this. 1 mole of an ideal gas at 25 degrees is subject to expand reversibly and adiabatically to 10 times of its initial volume. What is the change of entropy during the expansion? क्या होगा बेटा? Delta S of the system to 0, delta S of the surrounding भी 0 और delta S of the total भी 0. इस तरह के जो एंट्रोपी कांस्टेंट पे चीजें चेंज होती है, व्हाट डू वी कॉल इट एज? Isentropic process, and in that case delta S should be 0. Done. Next, see this. 1 mole of an ideal gas, diatomic gas Cv is given, was initially transformed from 25 degrees and 1 liter when its temperature is 100 degrees, volume is 10 liters. What is the एंट्रोपी चेंज? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए सबको. देखो मैं सिर्फ फॉर्मूला यूज करना बता रहा हूँ. डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन. ओके, number of moles 1, Cv is 5, Cv ln T2 is how much? 100 मतलब 373, 25 मतलब 298 plus nr 1 ln V2 is 10 by 10 1. Okay, so that we can write it as 5 ln whatever be that given here, and we have to express that in calories. So r क्या हो जाएगा? 2 calories, so 2 rn l ln 10. Done हो जाएगा ऐसे.
formula Yes, based sir. question. Check out 10th one. Enthalpy change for a given reaction 298 kelvins is minus x joules. If the reaction occurs spontaneously at 298 kelvins, the entropy change at that temperature will be how much? Okay, so which means we know that the minute you have mentioned it is spontaneously, क्या आना चाहिए दिमाग में? That delta S total is greater than zero. अच्छा, ये greater than zero होगा तो ये process reversible होगा या irreversible होगा? ये irreversible Irreversible. होगा. So ये दिमाग में आ जाना चाहिए. Spontaneous बोला तो irreversible ही सोचना चाहिए. So क्या हम लोग लिख सकते हैं delta S of the system is equal to minus x by t? ये क्या मैं लिख सकता हूँ? No, we can't write that. Delta S of the system will be greater than minus x by t. इतना हम लोग को पता है. Clear? But delta S surrounding को हम लोग लिख सकते हैं ना, that is x by t, because delta H of surrounding is q irreversible by minus q irreversible by t. Q irreversible is minus x, minus of minus x divided by t, so which is x by t. ये लिख सकते हैं सब लोग. So therefore delta S of the surrounding is equal to x by 298. Numerically this is the value. ठीक है? So can be negative but numerically larger than x by 298. Can be negative but numerically smaller than x by 298. Cannot be negative, cannot be positive. Which is correct, beta? Everybody, give me an answer then. Cannot be negative. Why? He's asking about the Okay. entropy change of the system, beta. If the reaction occurs, this entropy change at that temperature is correct. Is see कुछ भी मेंशन नहीं किया, हमेशा सिस्टम लेने का. Okay, हाँ. क्वेश्चन में हमेशा सिस्टम लेने का. सो सिस्टम का एंट्रोपी पूछा है. सो सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है? Can be negative. हाँ, got it. यस, बट न्यूमेरिकली स्मॉलर देन x by 298. ठीक है, So why did we take minus x by t? क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ 298 इज माइनस x Oh, जूल्स. okay, okay. Yeah. ठीक है, Yes, sir. डन. आया सबको Sir, ये? but अगर reaction spontaneous है तो normally entropy positive होता ना, इसके लिए तो spontaneous नो, होगा. स्पॉन्टेनियस होगा तो पॉजिटिव थोड़ी होगा. हो सकता है नेगेटिव भी हो, बट उतना ही सेम अमाउंट पॉजिटिव सराउंडिंग में चेंज हो रहा होगा. डेल्टा एस टोटल जीरो होना चाहिए. ओके, सपोज बेटा अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव होना तो होना ही चाहिए ना, मतलब डेल्टा एस हाँ. नेगेटिव होगा ही. करेक्ट. हाँ. नेक्स्ट, सी दिस केस एवरीबॉडी. ये आप लोग सब लोग बताएंगे मुझे, ठीक है. अब डेल्टा जी का हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होगा. देखो, सो एक बार खुद से ट्राई करो डेल्टा जी कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, उसके बेसिस पे फिर मैं बताता हूँ. एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने निकाल के रखा था. एक मिनट. मीनवाइल आप लोग ट्राई करो, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ. Calculate the entropy change. Calculate entropy change at 373 kelvins from transformation of H2O with 1 and H2O 1 H2O liquid, sorry, 1 नहीं है, liquid है. H2O liquid maintained at 1 bar is in equilibrium with H2O gas maintained at 0.1 bar. Okay, delta H of vaporization is given as 40.66 kilojoules per mole. काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ओलंपियाड में. ओके, सो ये क्वेश्चन ना एकदम इजी भी है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना भी है उसको. और ये समझ में आ जाएगा तो आपको डेल्टा जी इवैल्यूएट करना आ जाएगा. डेल्टा जी आ जाएगा तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है. उसके बाद
तो पहले ये ट्राई कीजिए सब लोग. Calculate the entropy change at this temperature when H2O liquid, which is maintained at 1 bar, now it is converting into gaseous form, which is at 0.1 bar. देखो इसका बेसिक फंडा क्या समझना है. अगर आपको ऐसे दिया है ना, इसका मतलब क्या समझना है आपको कि देखो ये 1 बार पे तो H2O लिक्विड विच इज एट 1 बार प्रेशर, इस बार पे आने के लिए पहले तो उसको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा ना. दिस लिक्विड विच इज एट 1 बार must get into H2O, but get into H2O liquid, H2O gas, which is also at 1 bar, and then from here then it can go up to H2O, which is a gas, and converting it to 0.1 bar. ये दोनों स्टेप समझ में आना चाहिए. ठीक है, that while this liquid which is maintained at 1 bar, first we have to make sure that it is vaporized at that constant pressure, you know, so that it reaches an equilibrium, and from here it can be further converted into 0.1 bar. So यहाँ से यहाँ पे आने के लिए it is going through these two steps. So entropy change here to here you have to calculate, entropy change here to here you have to calculate and sum it up. Clear everybody? So ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे स्टार्ट करो. क्लियर है? कभी प्रेशर डिफरेंस दिया है तो आपको क्या करना है, समझ में आया? पहले उस पर्टिकुलर प्रेशर तक लेके जाओ, फिर वहां से फिर प्रेशर चेंज कर दो. So I'll directly write the values now. Delta S, because they are in equilibrium, delta G in both the cases is zero beta. यहाँ पे भी delta G zero है, यहाँ पे भी delta G zero है. So we know that delta H of delta V of VAP, delta S of VAP will be equal to delta H of vaporization by T, and this I'll take it as 1. Delta S1 is equal to vaporization is 14.66 divided by temperature which is 373 केल्विन्स. ये हो गया डेल्टा S1. अच्छा डेल्टा S2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है ना इधर से इधर. क्लियर? देयर इज नो अदर चेंज हियर. प्रेशर चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर चेंज जो हो रहा है यहाँ से यहाँ पे, nRT ln P2 by P1. हाँ क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो व्हाट डू वी गेट? वी नो दैट NR ln V2 by V1 हमको पता है, तो अभी क्या होगा? NR ln P1 by P2 हो जाएगा. सो N नंबर ऑफ मोल्स मेंशन्ड है क्या यहाँ पे कुछ? H2O liquid 1 gram, no 1 mole mentioned है, sorry 1 mole, it is given as 1 mole. So therefore it is 1 mole. So R ln P1, P1 कितना है बेटा? P1 is 1 bar divided by 0.1 bar, so it is R ln 10. So therefore this is delta S total, delta S of the system for this particular change is delta S1 plus delta S2. So 40.66 by 373, I think this is in kilojoules, plus R into ln 10. That's it. आ गया? Yes sir. आई थिंक ये निकालना सबको आ गया ना? राइट. अभी देखो इसको हम लोग कैसे डेल्टा जी के साथ रिलेट करेंगे. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है जो डेल्टा जी के साथ रिलेट हो जाता है. ओके let me show you the same question. Yeah, got that. Check this. Compute ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट इसको क्वेश्चन का डिटेलिंग को समझो. इसमें से कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में कंक्लूजन ही पूछा गया है. इसका पूरा क्रक्स पूछा नहीं है कहां से कहां स्टार्ट हुआ है. ठीक है. कंप्यूट delta H naught of the reaction, delta S naught of the reaction, and delta G naught of the reaction here for this reaction, where the transformation is H2O liquid to H2O gas at different temperatures. 4 different temperatures are given. Okay.
First temperature is 323.15. This is T1. T2 temperature is 348. T3 temperature is 373. T4 temperature is 398 and T5 temperature is 423. एक इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसको डेल्टा जी को फाइंड करने के लिए बोला है. इंडस्ट्री में हम लोग को ऐसे डेटा दिया जाता है और सबका कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर एनालाइज किया जाता है. So these temperatures are given and I need to find out delta G naught. And first delta H naught के values सब पे given है. Delta H naught value, delta H naught value given for H2O liquid 298 kelvins is minus 285 kilojoules. Delta H naught of H2O liquid at 298 kelvins measured is given as minus 241. Sorry, this is gas. Gas is measured as minus 241.82 kilojoules. Okay, and delta S naught का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आई थिंक मैं डायरेक्टली डेल्टा S naught ले लेता हूँ. कैलकुलेटेड वैल्यू डेल्टा S naught ऑफ द रिएक्शन में डायरेक्टली ले लेता हूँ, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग एज अप्रोक्सीमेटली 115.56. और डेल्टा H naught ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स ना, और हर टेम्परेचर पे थोड़ा सा ही चेंज होता है. small amount change is happening. So again I'm taking an average of around 41.93. ये आ रहा है value. Correct? These are the values which you are getting at different temperatures. Because देखो अभी आपने equilibrium में भी पढ़ा है, you have studied in thermodynamics also that between two temperature ranges, unlike there 400 degrees का difference है, अगर 400 degrees का difference है तो delta H का value काफी change हो जाएगा. बट अगर 10, 20, 30 है तो उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट आएगा. ठीक है, इनफैक्ट ये टेम्परेचर 298 और इसके बीच में जो वैल्यू आया ना, इन दोनों के बीच में किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे हम लोग. किरचॉफ्स लॉ यूज करके मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू आया 42 और इन दोनों के बीच में वैल्यू आया है 41.9 और इन दोनों के बीच में वैल्यू आया है 39.88. मतलब आपको एक पॉइंट समझ में आया कि डेल्टा एच का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता. इसके लिए हम लोग वैन टॉफ्स इक्वेशन में, क्लासियस क्लैपेरियंस इक्वेशन में, ये सारे इक्वेशंस में हम लोग डेल्टा एच और डेल्टा एस को कांस्टेंट मानते हैं. इज दिस लॉजिक क्लियर एवरीवन? राइट. Yes, sir. So based on that, now if you calculate delta G बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, बिकॉज डेल्टा जी का वैल्यू अलग हो जाता है. डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. सो डेल्टा एच नॉट ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट वैल्यू है, बट टी डेल्टा एस नॉट काफी चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई डेल्टा जी नॉट वैल्यू फॉर डिफरेंट केसेस वाज फाउंड टू बी डिफरेंट. सो आई विल जस्ट राइट डाउन दैट वैल्यू हियर. T1, T2, T3, T4, T5 डेल्टा जी नॉट वैल्यूज. T1 क्या टेम्परेचर है बेटा? T1 इज 323. 23.15. करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली 348. T3 है 373 और T4 है 398 और ये है 423. तो इसका वैल्यू जो आया है ना, ये मैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहा हूँ. 5.63, 2.78, 0, माइनस 2.71, माइनस 5.34. अब कंक्लूड करना है आपको. देखो अभी क्या कंक्लूड कर सकते हो अभी आप? ध्यान से देखो, ये कौन सा टेम्परेचर है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट पे H2O और लिक्विड एंड गैस दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ये बताना था. सो यस, डेल्टा जी नॉट विल बिकम 0 एट बॉइलिंग पॉइंट, बट below the temperature delta G naught value is coming positive, which means reaction is more driven in which direction? Backward direction. And at higher temperature reaction is more driven in which direction? In the forward direction. I guess ये point clear है सबको? Yeah. Now come to this question and solve it. अभी आपको solve करके बताना है. ये solve किया तो मतलब आपको concept अच्छे से समझ में आया. चलो करो अभी.
ऑप्शंस बता दे जाओ मुझे आंसर। ए ऑप्शन क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? Sir, equilibrium was at what temperature? लिटिल लाउडर बेटा, व्हाट? से इट अगेन। Sir, equilibrium was at what temperature? 373, 100 degrees. Delta G of the reaction was equal to 0 at 100 degrees. पहले बी सी डी करके बताओ, उसके बाद हम लोग समझ जाए, बाकी का हम लोग समझ सकते। बी सी डी, बी सी इनफैक्ट बी सी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए और डी का वैल्यू आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है और डी में सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। चलो भी बात करते हैं फर्स्ट केस। दिस इज 263 डिग्रीज, मतलब 273 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज से भी कम, -10 डिग्रीज पे। -10 डिग्रीज पे बात हो रही है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, मतलब लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन में। दो बताओ, -10 डिग्रीज के पास वाटर आइस की तरह बिहेव करना चाहता है या लिक्विड की तरह? आइस। आइस की तरह। मतलब डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 इन दिस रिएक्शन। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है ना, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है। हाँ। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, मतलब डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। सो क्या ये पी करेक्ट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यू भी इनकरेक्ट है उसके लिए। आर, लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा या अब्सॉर्ब होगा? अच्छा, चैट्स में लिखा है क्या? मैंने चेक नहीं किया। Sorry, release. I didn't check the chats बेटा। ओके, देव पी नो बेटा, देव चेक करो फर्स्ट वाला, लिक्विड से सॉलिड जा रहा था। क्लियर? सो Yes, sir. फर्स्ट केस में डेल्टा जी इज लेस देन 0 और इसी में डेल्टा एस भी लेस देन 0। इसके मैं वो भी लिख देता हूँ, करेक्ट आंसर भी लिख देता हूँ। डेल्टा जी इज लेस देन 0, डेल्टा एस इज लेस देन 0 और डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एनर्जी रिलीज होना है, रिलीज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। करेक्ट? सो मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? आर ए करेक्ट ऑप्शन है। एंट्रोपी, सॉरी इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी इज बिकमिंग ग्रेटर देन 0। ओके, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा एच, सी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। करेक्ट बेटा? ओके,
यहाँ पे ये वाला चेंज हार्डली कुछ ऑब्जर्व हो रहा है ना, सो यहाँ पे कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता नहीं है यहाँ पे, राइट? अच्छा चलो, हो भी रहा है तो यहाँ पर हाउ मच इट विल बी डेल्टा, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, this value is negative, and imagine volume from liquid to solid. What is happening here? Liquid to solid, volume is slightly Expansion. increasing. Volume is slightly increasing. Yes, So sir. at constant pressure, volume is slightly increasing. नेगेटिव ही होगा डेल्टा यू। हाँ, तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है, ये फैक्टर तो बहुत छोटा है, तो आप हमेशा डेल्टा यू को डेल्टा एच के साथ ही एसोसिएट कर लो ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव होना चाहिए. So delta E should also be negative. So answer should be only R. Everybody got that? यस सर। Next, second वाला चेक करेंगे. लिक्विड से गैस जा रहा है, अभी बता सकते हो आप फटाफट, ये तो फटाफट बता सकते हो क्या क्या करेक्ट ऑप्शन है. Q लिक्विड से गैस जा रहा है तो P होगा क्या? पी भी होगा ना सर? P होगा ना, क्योंकि ये तो अभी हमने देखा ना, उस टेम्परेचर के नीचे डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यूज लेके आ रहा है, तो इजीली कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि यस, कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. नेक्स्ट, पी क्यू भी होगा। क्यू भी होगा, बराबर, और आर होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा. एस होगा क्या? नहीं हो एस, जाएगा। एस की बात कर रहा हूँ, एस होगा एस हो ना, जाएगा। होगा. क्योंकि उसको हम लोग डेल्टा एच से डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सी 100 डिग्रीज पे ही है, 100 सर डिग्रीज पे एंट्रोपी ग्रेटर होगा, पक्का नहीं डेल्टा होगा. जी जीरो। हाँ, तो क्यू पक्का होगा, और आर होगा क्या? आर नहीं होगा. एस होगा, एस होगा यहाँ पे. हाँ यस सर। क्लियर? ईशान, यू गॉट दिस बेटा? Yes, sir. लास्ट, H2O अगेन एट हाँ। 100 डिग्रीज, सॉलिड टू लिक्विड. अच्छा, 100 डिग्रीज के पास सॉलिड और लिक्विड में कौन सा स्टेट ज्यादा प्रेफरेबल है? लिक्विड। लिक्विड स्टेट, मतलब वो फॉरवर्ड जाएगा, मतलब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव। तो पी तो पक्का नहीं होगा. हाँ, और Q सॉलिड सही से हो लिक्विड जाएगा। जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, मतलब क्यू पक्का होगा, हाँ। राइट. और सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मतलब एंट्रोपी हीट मस्ट बी अब्सॉर्ब, सो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये नहीं होगा. डेल्टा ई शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है. यस सर। एस, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. एवरीबॉडी गॉट दिस? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुकलेट में भी है 3-4, प्लीज सब लोग अटेम्प्ट करिएगा अभी. ओके, अभी जब समझ में अभी अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, अभी मतलब आज कल में ही, ठीक है? क्लियर ऑन दैट? यस सर। See, on the same basis, this time I have taken a chemical reaction and used this same terms. यही फॉर्मूला यूज करो. अभी ये क्वेश्चन आप लोग आज या कल में सॉल्व कर लेना, ये वाला पूरा. गॉट? सो सब लोग ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा जी को कैसे यूज करना चाहिए. ओके, ओके सर। सेम वे आई हैव एडेड, नाउ आई हैव एडेड फ्यू केसेस ऑफ एंट्रोपी जहां पे इरिवर्सिबल हो जाए. इरिवर्सिबल होगा तो डेल्टा एस का वैल्यू कितना कैलकुलेट करना चाहिए, डेल्टा एस एच एच का वैल्यू कितना कैलकुलेट, उसके बेसिस पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस ऐड किए हैं. करेक्ट? मोस्ट ऑफ दिस हैव बीन आस्क्ड इन ओलंपियाड्स बेटा, सो ये अच्छे क्वेश्चंस है, आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करो एक बार. और सारे मैंने ओलंपियाड के क्वेश्चंस ही शॉर्टलिस्ट किए, ठीक है? तो आई हैव लाइक 5 सब्जेक्टिव वंस नीचे, एंड ऑल ऑफ दिस सब्जेक्टिव वंस आर वेरी सिंपल वंस, एक एक वन लाइनर के, कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं है. ओके, ionic not coming for empty. Okay, is that confirmed, Ishan? So VJC sir ने message send किया. Okay, good then. So just focus more on thermodynamics, strong करो thermodynamics को. Got it? So this is going to be a very good area going ahead in the other physical part. So I would suggest please try these questions. These are all based on that term only. So once you finish with this, Friday I will discuss once again. 1 more hour we'll sit together. आपको टाइम मिलेगा जब तक ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना है. हो जाएगा इस पे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट.
चलो, तो आई विल एंड द सेशन हियर। सर मेरे आइसोमेरिज्म के डाउट्स। हाँ, सर। इसके अलावा भी बचे हैं बेटा? नहीं सर, सिर्फ आइसोमेरिज्म के बचे हैं डाउट्स। मतलब ये आइसोमेरिज्म में यही डाउट्स थे या कुछ और भी डाउट्स थे? सर वो मैंने क्लिक करके भेजे थे ना, मैं रीसेंड करूँ क्या? हाँ, मिल गया मुझे। डिस्कस करूं मैं अभी? हाँ सर। बाकी लोग भी सुन लेना यार, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें से। एक कॉलम दिया था, कॉलम में एसिमेट्रिक सिंथेसिस करके पूछा गया। एसिमेट्रिक सिंथेसिस हिंट में दे दूंगा बेटा, आप चेक कर लेना बाद में। ओके, एक सेकंड से मैं ढूंढ रहा हूँ। एटी फिफ्थ क्वेश्चन है ये, बुकलेट का ही है ना? हाँ यस सर। फाइन, राइट। सो हियर so the question has, everybody listen, question had options A, B, C, D. A given as pair of optical isomers, asymmetric synthesis, pair of diastereomers, enolization. Okay, these are the terms given. So what you should search for in all the cases, I'll tell you. उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। A, pair of optical isomers, a pair of optical isomers. When you use the term pair of optical isomers, मतलब ये enantiomers भी हो सकते हैं या डायस्टेरियोमर्स भी हो सकते हैं। समझ क्लियर बेटा? तो आपको दोनों चेक करने हैं ऑप्शंस में कि कंपाउंड्स, ऑप्शन कॉलम 1 में, कॉलम 2 साइड में दिया है कुछ कंपाउंड से जो एनेंशियोमर भी है, कुछ कंपाउंड से जो डायस्टेरियोमर भी है, तो ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों करेक्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है। सेकंड, एसिमेट्रिक सिंथेसिस दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में सिर्फ डायस्टेरियोमर्स देखना है आपको, डायस्टेरियोमर्स ढूंढना है। क्लियर? ओके। अच्छा, और वो स्ट्रक्चरल है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो सारे एसिमेट्रिक ही है। स्ट्रक्चरल और ऑल एसिमेट्रिक, आइदर डायस्टेरियोमर्स और स्ट्रक्चरल काइंड, नॉट एनेंशियोमर्स, और सिंपली एसिमेट्रिक मतलब नॉन एनेंशियोमर्स बस। ओके सर। नेक्स्ट, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, वो तो गिवन है, वो तो सीधा सीधा ऑप्शन मैच हो रहा है। थर्ड ऑप्शन वाज पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स मतलब सीधा सीधा मैच हो रहा है वो हो तो। जाएगा सर, बाकी तो इजी है। नेक्स्ट, डी है, सबके लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन मतलब जहां पे आपने देखा कि कोई कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन में या आल्डिहाइड प्रेजेंट है, करेक्ट, जिसके पास यहाँ पर CH3 ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होगा तो ये इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये हमेशा इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना, डबल बॉन्ड COH एंड H, ऐसा ऐसा एक ऑप्शन गिवन है आपको। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट। नेक्स्ट, डीकलराइजेशन ऑफ Br2CCl4। ओके, और एक ये कौन सा है बेटा, 83 है ना, 83 वाला मैच द कॉलम है। ओके, उसमें एक ऑप्शन है जो कि आई थिंक अभी तक हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये आगे आने वाला है। डीकलराइजेशन ऑफ Br2 in CCl4 solution। देखो बेटा, Br2 in CCl4 is a brown color solution. It is a brown color solution. What Br2 does, if you have a double bond or a triple bond, then Br2 and CCl4 will react with that and get added up। Br ऐसे add हो जाएगा
ट्रिपल बॉन्ड है तो दो दो Br ऐड हो जाएंगे। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? सो ये क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। डन, ओके, यस सर, गॉट इट। दैट्स इट। बाकी सबको भी क्लियर है? क्या करना है, ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस और ब्रोमीन CCl4 ब्राउन कलर डीकलराइजेस, मतलब इट इज डिटेक्टिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट 16th question which is given, specific rotation. Specific rotation means alpha. Alpha of glucose is given as 52 degrees and alpha of fructose is given as सर minus आगे इसके 52 पहले degrees. क्वेश्चन, अच्छा वो हो गया था। 16th question, बाकी लोग को भी क्लियर हो जाएगा, ये देख लेना। अल्फा ऑफ ग्लूकोज गिवन है, अल्फा ऑफ फ्रक्टोज गिवन है। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर? ओके, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर। देखो, सुक्रोज when you add water, we will get glucose plus fructose, and both of you will get equal amount. Okay, so if x moles of glucose is there, ये पूरा x moles x और x में convert हो जाएगा। Clear? So since we have equal amount of glucose and fructose, the alpha value, right? So how do we write the invert sugar means इसका इन दोनों का addition, that's it. How do we usually write alpha beta? Alpha is equal to theta by c into L, right? ये formula तो याद है ना सबको? Theta is absolute rotation and alpha is specific rotation. So it is like alpha 1 will be equal to theta 1 by CL and alpha 2 will be theta 2 by CL, है ना? So अभी देखो alpha 1 plus alpha 2 here, or rather theta 1 plus theta 2 here, theta 1 plus theta 2 will be equal to alpha 1 CL plus alpha 2 CL, correct? बट इसका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितना परसेंटेज है, यहाँ पे x परसेंटेज है, यहाँ पर भी x परसेंटेज है। सो हाउ मच इट इज x by, if this is x percentage or x amount, this is also x, sorry, this is also x amount, that should be equal to 2x, sorry, that should be equal to x amount of some alpha resultant into CL. So अभी देखो alpha resultant will be equal to x common आ जाएगा, right here, and this would be alpha 1 plus alpha 2, alpha 1 plus alpha 2, correct? Sorry, this is 2x का amount के लिए है ये, so therefore that will be divided by 2. So how much we will have? We'll have this as 52, right? -20 minus 92 divided by 2, so कितना आ जाएगा? minus 40 by, so 20, minus 20 आ जाएगा। so ऐसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट, number of isomers obtained on monobromination of M-methyl benzene, ये कर सकते हो ना बेटा? इसमें कुछ सर एम मिथाइल बेंजीन क्या होता है? M डाइमिथाइल, डाइमिथाइल है ना, ऐसा है ये वाला M अच्छा, डाइमिथाइल। ओ ओके, इस पे मैं कंफ्यूज हो bromination। गया। हाँ, ये हो जाएगा सर, इजी है। नेक्स्ट, which of the following is more acidic solution, ये सब हम लोग आयनिक वाला बाद में कर लेते हैं, ठीक है? वैसे मैंने भेज दिया आयनिक वाले सारे, एक दो बचा है शायद। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ये कर सकते हो? एक सेकंड सर। थर्ड क्वेश्चन, जेई 2018। अच्छा नहीं सर, ये कंफ्यूज हो रहा था मेरे को, वो लोग ने सबके लिए ये डैश और उसका मतलब आ नहीं रहा था आंसर। ऐसा गिवन है बेटा, सब लोग देखना, स्ट्रक्चर ऐसे गिवन है यहाँ पर, फिर इसके साथ में डबल बॉन्ड है, फिर ऐसे कंपाउंड है OH, यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसा गिवन है OH, और ऐसा गिवन है, यहाँ पर OH गिवन है, और यहाँ पर OH गिवन है,
find the total number of optically active stereoisomers is. ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोइसोमर्स कितने हैं ये बताना है, राइट? तो पहले हमको इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे बन सकते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसमें क्या क्या फिक्स्ड है ये समझो, जिसको छेड़ना नहीं है हमको। ये ट्रांस पोजीशन पे ऑलरेडी गिवन है, ये ट्रांस पे गिवन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड गिवन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड गिवन है, करेक्ट? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स in this case. सर नीचे वाला फिक्स नहीं है ना, सिर्फ ऊपर वाला फिक्स्ड है। कहाँ पे बेटा? सर वो ऐसा zigzag लाइन में दिया है कि नॉट फिक्स्ड है, डबल हाँ, बॉन्ड। ये नॉट फिक्स्ड है, राइट, सॉरी, ये वाला नॉट फिक्स्ड। ये वाला स्ट्रिंग गिवन है, रिबन गिवन है, रिबन मींस नॉट फिक्स्ड, ये वाला रिबन जैसा, सॉरी, ओके रिबन जैसा गिवन है, राइट, नॉट। सो अभी क्या क्या फिक्स्ड है देखो, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। सो अभी जो फिक्स नहीं है वो कौन सा है बेटा? सिर्फ ये वाला नॉट फिक्स्ड है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स इट। Only two places we have centers where we can think that they will change. Okay. Now, in case if we put one particular line here, there is a symmetry that can come when 3 होगा ना जब आंसर। ये होगा ऊपर, ये भी होगा ऊपर, है ना? सो अभी हम लोग के पास दो ही केसेस, यहाँ पे कितने केसेस आ रहे चेक करते हैं। एक होगा ऊपर वाला और यहाँ पर भी ऊपर, एक होगा ये ऊपर ये नीचे, एक होगा ये नीचे और ये ऊपर, और एक होगा दोनों नीचे। यही चारों केसेस होते हैं। ये दोनों केसेस सेम हो जाएंगे बिकॉज दे विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड? समर्थ, इज दैट क्लियर? ये Yes, दोनों sir, clear. केसेस सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों एनहांसोमर्स हो जाएंगे। सो बस ये हाँ। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बस क्वेश्चन उतना ही पूछा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियोइसोमर्स? 2। क्लियर? हाँ, yes sir. Next. 2-methyl pent 2-ene reacts with HBr peroxide addition, number of possible stereoisomers. इसको रहने दो ना, अभी हाइड्रोकार्बन कुछ भी किया नहीं है। अच्छा, ओके। सेम ओजोनोलिसिस आपने कुछ किया नहीं, ओजोनोलिसिस। हाँ, Optical rotation of tartaric acid, as its optical activity of tartaric acid is named after this because it has, okay, ठीक है। ये तो अभी हमने पढ़ा है। देखो टार्टारिक एसिड ऐसे होता है, COOH COOH। तो मेरे को बस ये डाउट था कि वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव होता है, डी ग्लूकोज से डिराइव होता है। हाँ देखो यहाँ पर D plus T plus tartaric acid। The optical activity is named because it has a positive, the optically active, sorry ये optically inactive वाला है। optically active वाला ऐसे हो सकता है, D होना चाहिए, मतलब OH लेफ्ट में और ये OH राइट में, और यहाँ पर H इधर और H इधर। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सी एवरीबॉडी, द क्वेश्चन वाज द ऑप्टिकली एक्टिव टार्टारिक एसिड is named after D plus tartaric because it has a positive, because it have a positive optical rotation and it is derived from D glucose. That was the question. It has pH in organic solvent because it has a positive pH in organic solvent. Okay. Next, optical rotation and is derived from D plus glyceraldehyde. Optical rotation when substituted by deuterium. Okay. यहाँ पर ग्लूकोज हम लोग ये नहीं बोलता है कि ग्लूकोज when it comes to D glucose itself is derived from glyceraldehyde. Understood?
तो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट किससे डिराइव्ड है? ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव्ड है। ओह ओके। ठीक है, so that's the only question answer, right? Next, number of stereoisomers obtained by bromination of trans 2 तो butene. ब्रोमिनेशन में 2 ब्रोमीन डालना होता है सिंबल? दो ब्रोमीन डालना होता है। अच्छा और ये भी आपको समझेगा नहीं बेटा, इसमें एंटी एडिशन होता है, सिन एडिशन नहीं, तो ये सब पढ़ा नहीं होगा, ओह ओके, तो आई लीव नहीं इट। आना चाहिए सिलेबस में। ये आगे आएंगे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे। हाउ मेनी आइसोमर्स, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सिलेबस से रिलेटेड है। सो हाउ मेनी आइसोमर्स दिस हैज? डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH COOH and we have H and CH3 here. This is how it is. पहली बात तो ये कायरल सेंटर नहीं है, इसको ध्यान देना, ठीक है, दैट दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर। हाँ यस सर। ठीक है, ना कि वो जियोमेट्रिकल दिखाएगा ना कि वो स्टीरियो दिखाएगा, मतलब ऑप्टिकल दिखाएगा, तो इसको भूल ही जाओ, बाकी दोनों को ही चेक करो। तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी सेम CH3 दिखेगा उसको। So only here there is a double bond which will give cis and trans isomer. So only 2. सर इसका आंसर 3 या 4 दिया था, और फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड पे भी GI दिया था। So ये equal distance पे है ना बेटा, ये तो इस तरफ हाँ से डालो, सर, इस तरफ से वो डालो, डाउट था। क्योंकि वो प्लेन ही अलग है ना, ये दोनों प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, तो हो ही नहीं सकता, 2 ही होना चाहिए आंसर। हाँ ओके सर। So the following carboxylic acid would be resolved by reaction with enantiomerically pure chiral amine. Okay. जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। 49. This question asked is there is some carboxylic acid बेटा, और उसको अमाइन के साथ रिएक्ट करना है RNH2 के साथ, और उसको रिजॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पूछा है कभी ऐसे, अगर जेई में या आप अभी मेजर में ऐसे आप क्वेश्चंस देखोगे where it is asked some acid is been reacted with amine and you have to resolve it. If the question is asked, put it this way, then what is the options you will search for? You will search for optically active or simply a chiral molecule. That's all. You just need to check out for a chiral molecule. Understood? All you need to check out is a chiral molecule. Chiral molecules can only be resolved. हाँ, chiral molecule which has RCOH. अगर RCOH ही नहीं है तो क्या फायदा फिर? एसिड होना चाहिए और वो chiral molecule होना चाहिए. You can see that, which is that compound. इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सी. C is biphenyl. देखो biphenyls we know that when there are bulky groups they will be optically active. वो chiral हो जाते हैं ना. यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर NO2 है, ऐसा है. तो ये दोनों तो सेम प्लेन पे नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे ना प्लेन पे, ठीक है, अंडरस्टूड, ऐसे रह जाएंगे प्लेन. ये ऐसा रहेगा तो बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल घूम जाएगा बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस फ्रॉम बोथ दिस ग्रुप्स. यस सर यस सर। वो कायरल हो गया, बस उतना ही आंसर. A solution of optically active 1-phenyl ethanol racemizes in acidic medium. It is due to. Okay. ये सिलेबस में है आपको, और अच्छा क्वेश्चन भी है, सब लोग देखेंगे. क्वेश्चन asked is question number 75. Optically active phenyl ethanol given है बेटा. Phenyl ethanol. Ethanol means OH रहेगा, एक तरफ CH3 है, एक तरफ PH है, एक तरफ pH है और एक H है. So this is an optically active phenyl ethanol. So phenyl ethanol racemizes in acidic medium. It is due to. देखो तो अभी ये स्ट्रक्चरली अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये ऐसा है, C it is OH here with H here and CH3 here, double bond and this way. This is how it is been present here. अभी अगर हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में लिया ना बेटा, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन will accept this
H plus and becomes OH2 plus. And I told you that OH2 becomes a good leaving group here because it can make a stable carbocation. So this becomes a very stable carbocation, CH3 plus. So plus H2O आ जाएगा. So this is at a stable position here. So imagine आपने start किया कोई R configuration से. If this was R configuration, now this has become a carbocation. Carbocation में कैसा होगा बेटा? Carbocation एक ऐसा group है. This is a carbocation group. Clear? So carbocation is planar. So the incoming water molecule, again when it attacks, it can attack from the top, it can attack from the bottom. So therefore now you will get two compounds, OH, CH3, H and pH, and you will also get this as H, CH3, H and pH of equal quantity. Equal quantity means racemic mixture. Clear everybody? And ये racemic mixture क्यों मिल रहा है बेटा? What was the reason? For the formation of stable carbocation. That's it. Oh, okay. Carbocation is also called as carbonium ion. So option B. Okay. Okay, sir. Have you all understood that? Next, configuration of the molecule is there any problem here? Simple molecule OH. सर हाँ, इसमें मेरे को ये डाउट था कि फ्रंट और बैक क्या लेते हैं हम लोग जनरली, मतलब फ्रंट और बैक क्यों चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन था और इसमें 4 ऑप्शंस थे, 2s, 3r, 3s, 2r, मतलब 1 2 3 कैसा लेंगे ऊपर? ओह ओके ओके, इसमें ऐसे करके दिया हुआ है. ओ फ्रंट एंड बैक कैसे लेना? हाँ, मतलब दोनों 2s 3r होगा या 2r 3s होगा? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सब लोग ठीक है, देखो इसमें ना ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना. सपोज अगर ये आर आया, ये आर आया और ये एस आया, इमेजिन करो, तो नंबरिंग है ना, नंबरिंग हमेशा इधर से होगा बेटा. आर को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है नंबरिंग में. ओके. अंडरस्टूड? सो अगर आपको आंसर ऐसा आ रहा है, एक बार आपने नंबरिंग किया तो 2s आ रहा है और 3r आ रहा है, एक बार किया तो 2r आ रहा है और 3s आ रहा है, विच इज द करेक्ट नंबरिंग हियर? 2r और 3s. 2r and 3s. ठीक है. ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन यार. Yes, sir. Which of the following compounds will not show geometrical isomerism across the pi bond? Across the pi bond. सर इसमें A ऑप्शन, B ऑप्शन, सब में B नहीं, A D सब में सिमेट्रिकल है ना, मतलब A ऑप्शन में तो दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड जाएंगे तो मिथाइल ही आता है. हाँ तो नहीं हो रहा है ना. सर पर वो नहीं ऑप्शन नहीं, सिर्फ B ऑप्शन दिया है करेक्ट. A, क्रॉस पाई बॉन्ड ही बोला है ना. विल नॉट. हाँ सर, अक्रॉस पाई बॉन्ड दिया है और A, C और D ऑप्शंस रॉन्ग है, मतलब उसमें होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस द पाई बॉन्ड, पर वो क्यों होगा? ना ना ना, ए में किधर है पाई बॉन्ड के लॉ? हाँ सर, ये क्वेश्चन का आंसर भी दिया है एमएससी में. will show geometrical isomerism, will not show ना. Yes, sir, will not show. A के along नहीं शो करेगा, B के along, B के along भी शो नहीं करेगा. B के along शो कर रहा है ना. Let me show for others, everybody. 141 question. The question had something like this. We had this with a double bond, C, H and methyl is there. And there is one methyl here, one more methyl here. And then we have double bond like this, with bromine coming out, bromine going in, and sorry, Cl going in, Cl coming out. This is how it is given, right? So in case if at all I change any of this configuration, any of this, so check करो कैसे हो जाएगा. We will get this as double bond with this Cl will come here and
Cl will come here and Br remains this way. Br remains this way, right? So let us compare these two compounds. यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली एक जगह पे आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो ये दोनों शो कर रहे हैं ना बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. सो आंसर शुड हैव बीन ए. सर ACD तीनों होगा ना आंसर? सी इफ यू चेंज इट. या सी में भी एक केस ले सकते सर. वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तो वो था ना कि एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए वरना नहीं शो करता. ना सेम ग्रुप्स होगा तो उसमें आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा तो भी तो शो करेगा. आर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा. क्लियर? सो इसमें शो कर रहा है ना बेटा, बी में भी शो कर रहा है, सी में भी शो कर रहा है, डी में भी शो कर रहा है, क्योंकि आर एस चेंज हो जाएगा उसमें. गॉट इट? एफ एफ जो है उसको उल्टा कर दो अभी, तो एक आर हो सकता है, दूसरा एस हो सकता है एक बार. अंडरस्टूड? सर मतलब उसको फिर बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अक्रॉस pi bond. Yes. If you have something like this, everybody listen. If you have C double bond C here, and imagine I have some chiral center here which is R, and same molecule same group है, और यहाँ पर S कार्बन है, और यहाँ पर CH3 है और H है. अच्छा हाँ, हम लोग R को ज्यादा प्रायोरिटी देते R हैं. को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसको हम लोग मानेंगे Z. CIP. ठीक है? यस सर. हाँ आता है. We will apply CIP. सर तो आंसर ए होगा ना? CD सब में CIP लग रहा है, A है आंसर. ओके सर. Find the total number of isomers of the ring, 5-membered ring C7H14. ये कर लेना यार, ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये हो गया सर. ठीक है. Molecule is pyramidal, X stereomers and stereoisomers possible for C, A, B, E, D. टू ही ना बेटा, पिरामिडल है. समझा नहीं सर. Question given is this, everybody. A molecule is pyramidal, X stereoisomers. Pyramidal है और X stereoisomers are possible for a compound A, B, E, D. Compound A, B, E, D. Find X. Okay. So we have a carbon. Molecule is pyramidal. And A, B, E, D करके given है. मतलब क्या है? A, B, D, E is a lone pair. ऐसा है. ठीक है. So number of stereoisomers पूछा है. Stereoisomers are possible for value of X. इसके कितने आएंगे? 2 आएंगे. कायरल सेंटर जैसा है तो. अच्छा हाँ ठीक है. नेक्स्ट. Okay, I'll just read the statements. Everyone listen. Correct statements इसमें से find करना है. First statement is eclipsed and staggered ethanes give different products on reaction with chlorine in the presence of light. Eclipsed and staggered ethanes give different products on reaction with chlorine in the presence of light. क्या ये correct है या incorrect है? इनकरेक्ट होगा ना सर? इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि कन्फर्मर्स में कोई भी बॉन्ड टूटता नहीं है, कन्फर्मर सिर्फ घूम रहे हैं. बट व्हेन यू डू मोनोक्लोरिनेशन यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड. क्लियर? सो व्हेन यू हैव स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मिंग, चाहे वो कोई भी कन्फर्मर हो, प्रोडक्ट सेम देगा. गेटिंग इट एवरीवन? सो eclipsed, staggered, any form of conformer will give the same product. Next, option B. The conformational isomers can be isolated at room temperature. Conformational isomers can be isolated at room temperature. सर इतना क्लियर नहीं है. नहीं कर सकते, because conformers have a very less amount of energy difference
and that is precisely the reason why they keep moving around from anti to gauche to ये ऐसे घूमते ही रहेगा continuously, so we can't isolate them at room temperature. We cannot isolate them. We need to go at a very low temperature to isolate them. Next, torsional strain in ethane is minimum at an angle of 60, 180 and 300. Okay, so which is correct, right? Because if you Yes, sir, start correct. here, everybody, this is how it is. So this is 60 degrees. ठीक है, this is 60 degrees. अभी ये अगर इसको 60 मानते हैं और इसको अभी घुमाते जाओ, 60 का 120 कर दो, फिर से एक्लिप्स आ जाएगा, और यहाँ से फिर से आप इस पोजीशन पे आ दो, 180 कर दो तो फिर से स्टैगर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे 270, फिर 300, ये 300 है ना, सो 60, 180 और 300 पे हमको स्टैगर्ड आ रहा है, और स्टैगर्ड पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होता है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन, steric strain is minimum in staggered gauche forms of N-butane. Staggered gauche form of N-butane. Is that correct, everybody? N-butane रहेगा, N-butane है, N-butane ऐसा होगा, यहाँ पर मिथाइल है, ये गॉश है, तो क्या इसमें वैंडरवॉल रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन मतलब वैंडरवॉल रिपल्शन, ये इसमें मिनिमम रहेगा या एंटाई में मिनिमम रहेगा? एंटर सर. हाँ, ये दोनों में कंपेयर करके सब लोग बताएंगे अभी किस में मिनिमम रहेगा. एंटाई में ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. सो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सी. ठीक है, यस सर. last one, write the number of possible acyclic compounds having the molecular formula as. B वाला ना, किसने हाँ सर, B पूछा था? वाला. अर्नव, आपने पूछा था शायद. C3Cl Br I and F. देखो बेटा, जब भी C3 ऐसे गिवन है ना, इसका मतलब ये एलीन फॉर्म में है, C डबल बॉन्ड C ऐसे फॉर्म में है, और यहाँ पर चारों ग्रुप में आप ये चारों को फिक्स कर दो. चारों ग्रुप में आप कितनी तरह फिक्स कर सकते हो? 3 डिफरेंट वेज में फिक्स कर सकते हो. सर ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है ना? क्या बेटा? ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में. हाँ, उसने ऐसा कुछ बोला है या असाइक्लिक ही बोला है? मतलब सिर्फ एसाइक्लिक दिया है. स्टीरियो बोला है या सारे पॉसिबल? अच्छा, सारे बोला है, सॉरी, सारे पॉसिबल बोला है, सॉरी, मैंने सिर्फ स्टीरियो देखा. सो ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट, ये भी हो सकता है. तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ऐसे अरेंजमेंट कर दो. कितने आएंगे इसमें? कितने आएंगे? 6 आएंगे इसमें. ये चारों को 4 डिफरेंट वेज में कनेक्ट कर दो, सो 3 डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे एंड एवरी फॉर्म विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. यहाँ पे ये एक ही ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है, ये एक ही ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. हर बार यहाँ पे चेंज कर दो, 4 आएंगे, 4 में से 4 into 2 8 आ जाएंगे. ठीक है, अच्छा, ओके. ना एक सेकंड. देख लो. हाँ सर, लास्ट के 3 इमेजेस है. मतलब इन सब के बाद लास्ट में एकदम 3 इमेजेस भेजे. आपने एक सॉल्यूशन भेजा उसके बाद. ओके, ये तो अभी हमने कर दिया ना, थर्ड वाला. हाँ, ये तो ठीक है. तो भी ठीक है. और एक आपने जो भेजा है वो ये था, C डबल बॉन्ड C, ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है, ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है, एक कंपाउंड है यहाँ पर है, एक कंपाउंड है ऐसा है. इसमें हमको प्रायोरिटी देना है. बिटवीन दीज टू प्रायोरिटी किसको ज्यादा? नीचे वाले को ज्यादा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इधर. देखो, ये कार्बन सेम है. नेक्स्ट यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन लिंक है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी, तो ये 1. बिटवीन दीज टू यहाँ पे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना. तो इसका वर्चुअल फॉर्म बना के देखो तो कैसे होगा. इट इज लाइक ये कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पर. नीचे वाले में रियल होगा, ऊपर सूडो होगा, तो नीचे वाला होना चाहिए ना? क्या बेटा? नीचे वाले में रियल होगा और ऊपर वाले में सूडो होगा ना? हाँ, तो रियल को ज्यादा प्रेफरेंस, इसको ज्यादा प्रेफरेंस. सर तो जेड होना चाहिए ना आंसर.
बट इसमें देखो क्या एग्जैक्टली रियल और ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं क्या, वो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा ऐसा ओके। है ग्रुप, और यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे कि इसके साथ में भी डबल बॉन्ड है, राइट, ये वाला। तो यहाँ पर भी तो ग्रुप आएगा, बिकॉज ये कार्बन भी तो कनेक्टेड है इसके साथ। हाँ यस। नीचे वाले में एक ही कनेक्टेड है ना इधर, ये दोनों डिफरेंट हो गए, देख इसको ज्यादा प्रायोरिटी। अच्छा मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक करते वक्त ऊपर नीचे दोनों जगह पे देना होता है। हाँ, क्योंकि जो डबल कार्बन बॉन्ड है मतलब कार्बन। ये भी कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी दूसरे कार्बन से कनेक्टेड। ओह ओके। So priority should be like this, 1 and 2. Okay. अच्छा लास्ट ये एंट्रोपी बॉइल्ड एग का रॉ एग से ज्यादा क्यों होता है? हाँ, बॉइल्ड एग का एंट्रोपी ज्यादा होता है, बराबर, करेक्ट। ओके, रॉ एग में क्या होता है ना, प्रोटीन्स है ना, एवरीबॉडी लिसन अप दिस क्वेश्चन। प्रोटीन चेन्स ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, इंट्रामोलिकुलर, गॉट इट। अंदर का जो व्हाइट होता है ना, एग व्हाइट में बिफोर कुकिंग, बिफोर बॉइलिंग, इस तरह से स्पाइरल होता है और दोनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आप जैसे ही जैसे उसको बॉईल करोगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाते हैं और ये दूर दूर हो जाएंगे, और इसमें आगे पानी भर जाता है। वो दिखने में हमको सॉलिड लगता है, लेकिन ये पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गया और ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एंट्रोपी बढ़ गया इसमें, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स द रीजन। ओह ओके। क्लियर? हाँ सर एक लास्ट आयनिक का है, कौन सा बेटा? एक सेकंड में सेंड करता हूँ। हाँ सर भेजो। H3A is a weak triprotic acid. Calculate the pH of H3A. pH Ex is equal to minus log of x. Okay. 3 minus by 2. Okay, others isomerism का हो चुका है. If you want to leave, you can leave, or else you can just check this question, last one. The question was H3A is a weak triprotic acid with Ka1 given as 10 raised to the power of minus 5, Ka2 given as 10 raised to the power of minus 9, Ka3 given as 10 raised to the power of minus 13. And we need to calculate 0.1 molar H3A solution is given, for which I have to calculate Px, where x is A3 minus concentration divided by HA2 minus concentration. इसका हमको फाइंड करना है. Let me write the reaction complete equations. H3A is giving H plus H2A minus, and this is C minus X and X, and H2A minus H plus. इसका एल्गोरिदम पता है ना हम लोग कैसे लिखते हैं. यस सर। So C sorry X minus Y, X plus Y, maybe X plus Y, X minus Y, and Y, and H2A minus is giving H plus A 3 minus Y minus Z, Y minus Z, X plus Y plus Z plus Z plus Z and Z.
This is what we usually write, and we need to get last this concentration divided by this concentration, correct? Yes, sir. ये दोनों का concentration चाहिए. So what we can say is Ka1 is equal to H plus concentration into H2A minus concentration, or simply I'll write it in terms of this whatever given, X plus Y plus Z into X minus Y divided by C minus X. Basically I'll ignore all of them now. X plus Y plus Z into Y minus Z divided by X minus Y, and Ka3 is equal to X plus Y plus Z into Z divided by Y minus Z. See what all terms I'm ignoring. This I can ignore, this I can ignore, these two I can ignore, these two I can ignore, and this I can ignore. So I will get this as X by X square by C. Here I'll get it as XX will get cancelled. I'll get this as only Y, and K3 I will get this as, these two I'll ignore. So I'll get this as X Z by Y. Right, beta? Yes, sir. And all I need to know is A3 minus concentration, A3 minus concentration divided by HA2 minus concentration, which is Z divided by Y minus Z, which is same as Y. So Z by Y चाहिए ना इनमें से हमको, correct? So Y value तो हमको पता है, that is equal to Ka2. X value भी पता है हमको, X square is equal to K1 into C. So X is equal to under root of K1 into C. So therefore Z value Z by Y क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे given है ना, Z by Y is equal to Ka3 by X, right? Ka3 divided by X is how much? Under root of K1 into C. So Z by Y is equal to K3. K3 कितना given है? 10 raised to power of minus 13. That divided by under root of K1 given is 10 raised to power of minus 5. Concentration is 10 raised to power of minus 1. So 10 raised to power of minus 13 by 10 raised to power of minus 3. रूट निकाल दूंगा तो इसका आंसर 10 आएगा ना एट द एंड? आंसर 10 आएगा बराबर. सर आंसर 11.22 दिया है और केमिस्ट्री में एक्सपर्टीज का क्वेश्चन है. मतलब इग्नोर नहीं किया है. सर वो इसको छोड़ इग्नोर नहीं किया तो फिर कैसे करेंगे इतना कैलकुलेट? बहुत ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन, जबरदस्ती एक्सपर्टीज में डाल के. सर लेकिन क्यों नहीं किया इग्नोर? मतलब अगर के का डिफरेंस इतना है 10 रेज़ टू माइनस, डिफरेंस नहीं आ रहा है ना वो. ओके सर के का अगर डिफरेंस 10 रेज़ टू माइनस 5 10 रेज़ टू माइनस 9 10 इग्नोर रेज़ टू कर माइनस सकते हो 13 है बिना सर इग्नोर तो कर ही सकते हैं ना इग्नोर. हाँ बिंदास कर सकते हो सर पर एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी 11.22 क्यों आएगा? पर इतना डिफरेंस थोड़ी आता है. 11.22 गिवन है. हाँ इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा ना. ये इसी बुक में है. 10.2 ऐसा कुछ आया तो ठीक है. निकाल के रखा था बुक. ये केएल कपूर का ही क्वेश्चन है इसी में था. मैं आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ इसका विदाउट अप्रोक्सीमेशन. अच्छा ठीक है. डोंट वरी यार, ऐसे क्वेश्चन कोई जेई में नहीं पूछेगा आपको. इग्नोर करने वाले क्वेश्चन ही आएंगे आपको. ओके सर पर मेन डाउट तो वही है कि इग्नोर करके मतलब इग्नोर बिना किए और इग्नोर करके भी ऐसा 1.2 पीएच का क्यों फर्क आ रहा है? नहीं आना चाहिए, उतना नहीं आना चाहिए. आई विल चेक एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कितना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो दिख रहा है ना 10 आ रहा है इग्नोर करके. हाँ ठीक है. ओके गाइस चलो आई विल एंड द सेशन देन. इट्स टू लेट. थैंक यू सर. गुड नाइट. So we will discuss again on when Friday night after you finish the questions. So I'm sending this sheet now. Isomerism का एक बार रिवाइज कर लो ये फिर से, और जो थर्मो के डाउट्स है वो भी मैं भेज रहा हूँ. चलो गुड नाइट गाइस. गुड नाइट सर. थैंक यू. बाय सर. थैंक यू. बाय बेटा.